और no. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। फरहाद सर से कहो आज रहने ही दें। वैसे सर कल कह रहे थे 5:30 मेरी एमएस के साथ क्लास है। हमारी क्लास या अपनी दूसरी एमएस वाली? तुम एमएस में हो? गुड क्वेश्चन। Sorry, it was again disconnected. Let me share the screen. ओके, स्क्रीन आपको नजर आ गई है तो मुझे काइंडली बताइएगा। यस सर। ठीक है, वीडियो मैंने बंद कर दी है। लेट मी चेक बंद कर दी है या नहीं। हाँ, वीडियो बंद है मेरी। ठीक है। ओके, सो इन प्रीवियस 2 lectures we basically discuss the fundamentals of web technologies, their history, and then some terminologies which are common in this field. Today we are going to start our first hands-on language learning, and that is HTML. HTML stands for Hypertext Markup Language, and for this purpose I'm going to use the W3 Schools website. The advantage of this website is that you can practice the code right on your browser, and various important courses which we intend to cover in this course are already available as tutorial on this website. For example, you can see, if I click this one, HTML and CSS tutorial, JavaScript, then various programming languages, server-side languages, then some ideas about web building, AI, XML tutorial.
So the foremost language which one must learn to join the profession of web developers, that is the language HTML. So straight away on the screen you can see a little code of HTML, and let me here at the bottom it is written try it yourself. I'm clicking on that. So here you can see there is some code. I'll explain it later. But once I click run button, then on the right side its result is displayed. Let me change something just to show the idea. This is web development class. Okay, now I'll execute. So you can see on the right side the result is shown. Here text has been changed. So we'll see how it is structured, but it is just the idea that one thing that is important. चलें ये इसको मैं बाद में कवर करता हूँ, साथ साथ हम चलेंगे, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आपने मैंने आपको कल बताया था कि आपने इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर अपने कंप्यूटर पे उसको इंस्टॉल करना है। होपफुली आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया होगा। उसका मैं थोड़ा सा डेमो भी दूंगा। तो लेट्स लर्न HTML. So we are going to learn HTML5, which is the latest version. HTML is a standard markup language for web pages. With HTML, you can create your own website. HTML is easy to learn and you will enjoy it. Okay, so let's click this one. So this is the first slide, HTML introduction. HTML is a standard markup language for creating web pages. And what is HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML is a standard markup language for creating web pages. It describes structure of web page. तो जो वेब पेज का स्ट्रक्चर हम जब प्लान करते हैं तो HTML के डिफरेंट टैग्स यूज़ करते हैं। वो आगे आपको साथ साथ आपको हैंड्स ऑन मैं दिखाता जाऊंगा कि उससे क्या होता है। Then HTML consists of series of elements. There are various elements, उसको हम सीखेंगे। Then HTML element tells the browser how to display the content. तो मेन पर्पस जो HTML को होता है वो ये होता है कि कंटेंट को डिस्प्ले किस तरह करना है ब्राउजर में। तो ज़्यादा इसलिए हम इसको कई दफ़ा कहते हैं कि ये प्रेजेंटेशन लैंग्वेज है, हाउ टू प्रेजेंट द कंटेंट। Then HTML elements label pieces of content such as this is heading, this is paragraph, this is link, etc. So this is a simple HTML document. और अब इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे देखते हैं हम। ये ऑलरेडी इसको भी ट्राई इट योरसेल्फ कर लेते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि स्टार्ट हम कर रहे हैं डॉक्यूमेंट टाइप HTML। ये एक टैग है, आप देखें लेफ्ट साइड से शुरू हो रहा है। पहले हमने इसको लेस देन सिंबल आ गया, देन एक्सक्लेमेशन मार्क, डॉक टाइप HTML एंड देन क्लोज। इट इज कॉल्ड अ टैग। दिस इज अ टैग। वी स्टार्ट HTML डॉक्यूमेंट विद दिस टैग। डॉक टाइप HTML हम लिखेंगे, दैट विल बी आवर स्टार्टिंग टैग। उसके बाद हम HTML का टैग लिखते हैं। HTML का एक स्टार्टिंग टैग होगा और एक इसका एंडिंग टैग होगा। तो everything of HTML page must be enclosed within HTML tags. That is, for top one is starting HTML tag and bottom one is the inner HTML tag. HTML tag के बाद आ जाता है head का tag. One section is head tag and other section is body tag. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो HTML का पेज होता है उसके अंदर दो मेजर सब सेक्शन होते हैं। एक सब सेक्शन, वन सेक्शन इज डिफाइंड विद हेड टैग एंड अदर सब सेक्शन इज डिफाइंड विद बॉडी टैग। ये देखें यहाँ पे ये हेड का स्टार्टिंग टैग है और हेड का क्लोजिंग टैग है। तो एक सेक्शन सब सेक्शन ये हो गया लेवल 2 पे।
लेवल 1 पे HTML टैग है, लेवल 2 पे ये हेड का टैग आ गया। इसी तरह लेवल 2 पे जो दूसरा टैग है दैट इज बॉडी टैग। तो हमने जो कुछ भी HTML डॉक्यूमेंट में लिखना होता है that is covered within HTML tag, and within HTML tag then we write something in head tag and we write something in body tag। पहली चीज जो है कि जो कुछ पेज के ऊपर नजर आ रहा होता है that is written in body tag, और कुछ जो मेटा डेटा रिलेटेड इंफॉर्मेशन या पेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती हैं वो इंफॉर्मेशन हम टाइटल में लिखते हैं। तो जैसे आपको ये ऊपर डिफरेंट पेजेस के नाम नजर आ रहे हैं टैब के अंदर, तो ये जो पेजेस के नाम होते हैं दीज नेम्स आर रिटन इन द टाइटल, पेज टाइटल जैसे है। यहाँ पे लिखेंगे तो ये पेज ऊपर नजर आना शुरू हो जाता है, जो पेज टाइटल होता है यहाँ पे आ जाता है। और बाकी जो ये चीज़ अंदर डिस्प्ले हो रही है किसी भी पेज में, ये हम बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। तो बॉडी टैग के अंदर आपको H1 का एक टैग नज़र आ रहा है, H1 का स्टार्टिंग टैग एंड H2 का क्लोजिंग टैग। तो H1 स्टैंड्स फॉर हेडिंग 1, जो सबसे बड़ी हेडिंग होती है HTML में दैट इज कॉल्ड हेडिंग H1। इस तरह इसके नंबर्स होते हैं H1, H2, H3, H4, H5, H6। तो जो सबसे बड़ी हेडिंग होती है वो H1 होती है। तो हमने क्योंकि माई फर्स्ट हेडिंग H1 टैग के अंदर लिखा है तो ब्राउज़र ने उसका साइज, फॉन्ट साइज बड़ा कर दिया है। और इसमें फिर एक पैराग्राफ का टैग होता है। पैराग्राफ रूटीन में जब अपने लंबा चौड़ा टेक्स्ट लिखना हो तो फिर आप P टैग के अंदर लिखते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक एनी क्वेश्चन? अभी बिल्कुल मैं बेसिक स्ट्रक्चर अभी आपको बताया, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ेंगे। इफ़ आई चेंज माई पेज टाइटल यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, लेकिन मैं अगर आप चेंज करूँगा तो फिर मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है? मैं अब आपको एक HTML का पेज बना के दिखाता हूँ। वी कैन क्रिएट अ पेज इन अ नोट पैड। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने नोट पैड खोला है, इस नोट पैड को मैं क्या करता हूँ, इस नोट पैड में ये टेक्स्ट मैं कॉपी करता हूँ, ये मैंने इसमें कॉपी पेस्ट कर दिया है। नाउ आई हैव टू सेव दिस पेज। जब मैं इसको सेव करूँगा तो आई हैव टू सेव विद दिस पेज विद टेक्स्ट के साथ नहीं, डॉट टेक्स्ट के साथ मैं नहीं करना, मैं इसको डॉट HTML के साथ कर दूंगा। मैं लिख देता हूँ फर्स्ट HTML कोड डॉट HTML। ठीक हो गया। कई दफ़ा डबल कोड लगाना पड़ता है जब आप सेव करते हैं नोटपैड में, तो ताकि इंश्योर हो जाए कि ये डॉट HTML एक्सटेंशन में ही डॉक्यूमेंट सेव होगा, डॉट टेक्स्ट में सेव नहीं होगा। तो डबल कोड कई दफ़ा लगाना पड़ता है, कई दफ़ा नहीं लगाना पड़ता। तो अगर इन केस अगर आपसे सेव ना हो सक रहा हो नोटपैड में डॉट HTML एक्सटेंशन से, तो आप शुरू आखिर में डबल टैग लगा सकते हैं। एंड लेट मी पुट इन ऑन डेस्कटॉप, माई डेस्कटॉप। अच्छा जी, डेस्कटॉप पे मैंने रख दिया। उसके बाद मैं ये देखें, ये पेज आ गया मेरे पास। अब इसकी एक्सटेंशन है डॉट HTML, तो इसमें क्योंकि माई डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र इज़ क्रोम, तो उसकी एक्सटेंशन क्रोम आ गई है। आई कैन ओपन विद क्रोम फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ, इसने ये पेज खोल दिया है मेरे पास। और आप ये देखें इस पे, ये अगर मैंने माउस लेकर गया हूँ तो जो हेडिंग में एक चीज़ डाली हुई थी हमने, वो पेज टाइटल यहाँ पे देखें लिखा हुआ आ रहा है, पेज टाइटल क्योंकि मैंने हेड टैग में लिखा था। मैं आपको दिखाता हूँ हेड टैग में जो पेज टाइटल, ये देखें पेज टाइटल लिखा है हेड टैग में। तो ये पेज टाइटल यहाँ पे मुझे आ रहा है, क्योंकि टैब छोटा है, चौड़ा टैग होता तो हमें बड़ा भी नज़र आता। मैं लेट मी सेंड इट इन न्यू विंडो। ये देखें नई विंडो मैंने खोला है तो ये पेज टाइटल आ गया टैब के अंदर। दिस इज H1 हेडिंग, दिस इज पैराग्राफ हेडिंग। सो यू कैन सी हाउ इंटरेस्टिंग एंड सिंपल इज HTML। और ये इट इज़ हार्ट ऑफ वेब प्रोग्रामिंग। एज अ वेब डेवलपर यू मस्ट नो द पावर ऑफ HTML। अच्छा, अब
ये तो मैंने आपको दिखाया ब्राउजर में। अगर मैं इसी को अब नोटपैड में भी खोल सकता हूँ, ओपन विद नोटपैड, तो यही आपको डॉक्यूमेंट में नोटपैड में भी खुद नजर। इसी तरह मैंने इसे जैसे ब्राउजर में खोला है, ये इसके अंदर भी सोर्स वगैरह देखने का ऑप्शन होता है, व्यू पेज सोर्स। तो ये देखें पेज सोर्स ब्राउजर के अंदर भी फॉर डेवलपर्स देयर इज अ फैसिलिटी टू एनालाइज योर कोड। तो ये देखें इसके अंदर पेज का कोड हम देख सकते हैं। ये दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल इन द ब्राउजर। यहाँ पे मैंने क्या किया है, व्यू पेज सोर्स किया है। इसका इंस्पेक्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टूल। इंस्पेक्ट में आप देखेंगे तो ये आपको नज़र आ रहा है, HTML पूरा टैग कवर कर रहा है। ये हेड टैग है, बॉडी है। सो यू कैन सी वेरियस, यू कैन इंस्पेक्ट वेरियस लाइंस, लाइन बाय लाइन। तो इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ मैं। एज अ प्रोग्रामर जब आप काम करना शुरू करते हैं तो फिर आपको ये टैग्स वगैरह खोलने पड़ते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मैंने कल आपको बताया था कि इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर इज़ अ वेब सर्वर, और ये इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर को खोलते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स पड़े होते हैं। अब इसमें ये जो डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, दीज आर इन दी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। यानी कि ये डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट का कब काम आता है, होता ये है कि जब हम किसी भी ब्राउज़र से लोग अब एक्चुअल डोमेन नेम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं google.com लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैंने एक्चुअली पेज का नाम नहीं लिखा ना, मैंने सिर्फ google.com लिख दिया। इसका मतलब है जब मैं पेज का नाम नहीं दूंगा तो फिर एक डिफ़ॉल्ट पेज कोई ना कोई डिफ़ाइन हुआ होना चाहिए, एक या एक से ज़्यादा, ताकि वो फिर उस डिफ़ॉल्ट पेज को डिस्प्ले कर दे ब्राउज़र। तो अब मैं google.com करूँगा तो ये एक पेज आ गया है। तो ये एक तरह का डिफ़ॉल्ट पेज है जो आ गया है। एक्चुअली ये कोई ना कोई पेज होगा, लेकिन पेज हमें पता नहीं, नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह जब मैं लोकल होस्ट लिखता हूँ, तो मेरा लोकल वेब सर्वर मुझे पेज अपना थ्रो कर रहा है। अब ये कौन सा पेज थ्रो कर रहा है, ये जो है ये हमें यहाँ से पता चलता है कि डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स में जो सबसे पहला पेज है default.htm, ये default.htm को पेज को थ्रो कर रहा है। ठीक हो गया। अगर मैंने कोई और पेज खोलना है, फॉर एग्जांपल मैं खोलना चाहता हूँ index.htm, तो एक तो तरीका ये है कि मैं इसको प्रायोरिटी इसकी चेंज कर दूँ। यहाँ से मैं मूव अप करूँ, इसको मूव अप करके ऊपर ले जाऊँ, तो फिर ये इंडेक्स डॉट ये वाला पेज खुलेगा। तो अभी मैं लोकल होस्ट करता हूँ, लेकिन साथ मुझे पहले इसको रिफ़्रेश करना पड़ेगा। रिफ़्रेश करने के लिए दो तरीके होते हैं, वन इज़ F5 से ब्राउज़र रिफ़्रेश होता है, और दूसरा होता है कंट्रोल F5। F5 से जब ब्राउज़र रिफ़्रेश करते हैं तो वो ब्राउज़र अपनी कैशे से पेज दोबारा उठाता है। लेकिन हम कंट्रोल F5 करें तो फिर वो कैशे भी क्लियर करता है और सर्वर से दोबारा अपना ये पेज मांगता है। इसलिए जनरली एज अ डेवलपर आपको बार बार कंट्रोल F5 करना होता है। तो मैं आपको कंट्रोल F5 करके दिखाता हूँ। कंट्रोल F, ये भी लोड नहीं हुआ। लेट मी ट्राई वंस मोर। इसको स्टॉप करता हूँ मैं। अब वेब ब्राउज़र वेब सर्वर को स्टॉप और स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने स्टॉप किया है, मैं अब रीस्टार्ट कर रहा हूँ। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसको अब, अच्छा ऊपर वही वाला आया हुआ है इसलिए वो दोबारा दे रहा है। IS स्टार्ट, मूव अप, file, I have to save it. index.htm और
ठीक है जी, अभी इसको हम अच्छा जी, अभी हम देखते हैं इसको। कंट्रोल F5। माय अच्छा, ये पेज तो वो दूसरा वाला है। यहाँ पे मैंने लिखना है लोकल होस्ट। अच्छा, लोकल होस्ट में नहीं कर रहा है ये, इसको मैं आपको दोबारा फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में डेमोंस्ट्रेट करूँगा कि किस तरह ये रिफ्रेश करते हैं। दूसरी जो चीज़ इसमें बताने वाली है वो ये है कि अगर मैं आगे पेज नेम दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ index.html, तो अब ये देखें पेज खोल रहा है। ये कौन सा पेज खोल रहा है? ये index.html पेज खोल रहा है। इसको हम देखते हैं खोल के कि इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है। इसके लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा इंटरनेट पब्लिकेशन में। यहाँ पे ये पेजेस पड़े हुए हैं। अगर मैं ओपन करता हूँ इसको index.html को, तो आपको नज़र आएगा कि ये एक पेज है index.html, लेकिन इसमें पिक्चर नहीं आ रही। पिक्चर इसलिए नहीं आ रही कि ये अब ब्राउज़र ने डायरेक्ट खोला है, इसने सर्वर के थ्रू नहीं खोला। अगर सर्वर के थ्रू खोलेंगे हम, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको खोला है सर्वर के थ्रू खोला है, तो मैंने क्या लिखा है लोकल होस्ट डॉट फाइल का नाम, तो उसने पिक्चर भी शो किया है। वो मैं रीज़न बताऊँगा क्यों नहीं खोल रहा। और इस तरह आपने जब डायरेक्ट उसको खोला है ब्राउज़र ने, तो ये अब सर्वर के थ्रू नहीं आ रही है, डायरेक्ट खोल रहा है, क्योंकि लोकल हमारे कंप्यूटर पे पड़ी हुई है। तो इस वजह से ये डायरेक्ट ये पेज वही वाला ही है, लेकिन इसकी पिक्चर डिस्प्ले नहीं कर रहा। उसका रीज़न मैं बाद में बताऊँगा क्यों नहीं डिस्प्ले कर रहा। अच्छा, इसी तरह अगर मैं default.html को खोलूँ, तो default.html पेज है, इट इज़ अ सेपरेट पेज। ठीक हो गया। तो आपने बेसिकली आपको ये आना चाहिए कि आप कोई भी पेज को नोटपैड पे आपको सेव करके उसको HTML एक्सटेंशन में सेव करना आना चाहिए। जो बुनियादी बात है, जो मैं टाइम लगा रहा हूँ इस पर, क्योंकि आगे हम वो डेमो देखते जाएंगे, लेकिन किसी भी कंटेंट को उठा के आप किसी पेज पे सेव करके उसको HTML एक्सटेंशन में सेव कर सकते हैं, और फिर उसको आप किसी भी ब्राउज़र से खोल सकते हैं। ये काम आपको करना आना चाहिए। जैसे मैंने .html एक्सटेंशन में सेव किया एंड आई कैन ओपन इट इन अ ब्राउज़र। ये काम आपको करना आना चाहिए, ताकि फिर आप मल्टीपल पेजेस को जोड़ के पूरी वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? नो सर। अच्छा, anyone with any question? चलिए जी, आगे देखते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट कोड। इस कोड पे मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, कुछ टैग्स बताए हैं आपको, HTML टैग का बताया है, आपको हेड टैग बताया है, आपको बॉडी टैग बताया है। बॉडी टैग के अंदर आपको मैंने ये बताया था कि जो चीज़ भी पेज पे डिस्प्ले होती है दैट मस्ट बी इनसाइड बॉडी टैग। तो इसलिए हमने ये दो चीज़ें बॉडी टैग में लिखी थी, दो चीज़ें हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं राइट साइड पे। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। नाउ दिस इज द एक्सप्लेनेशन। ये जो इसकी एक्सप्लेनेशन आ रही है यहाँ पे, डॉक टाइप जो टैग है ये क्या करता है? इट इज़ डिक्लेरेशन डिफाइंस दैट दिस डॉक्यूमेंट इज एन HTML5 डॉक्यूमेंट। HTML4 या बिलो के लिए हमें ये टैग लगाने की ज़रूरत नहीं होती, वी कैन स्ट्रेट अवे स्टार्ट फ्रॉम HTML। लेकिन जिस डॉक्यूमेंट में ये लगा होता है डॉक टाइप HTML, इसका मतलब है कि ब्राउज़र को पता है कि इसमें HTML5 यूज़ हो रही है इस पेज में, सो इट विल process
those pages according to the rules and protocols defined by HTML5. इसके बाद HTML टैग आ गया. This element is the root element of HTML page, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था. Then is the head. Head element contains meta information about HTML pages. Meta information means information about the page. उसको हम meta information कहते हैं, वो हम वहाँ पे रखते हैं. इसी तरह टाइटल में जो इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है उसको जो वेब स्क्रॉलर वेब साइट्स होती हैं, सर्च इंजन्स होते हैं, वो भी टाइटल को आके सर्च करते हैं वेब पेजेस के. तो इसलिए मेटा इन्फॉर्मेशन टाइटल में रखी जाती हैं. और जो वेब के सर्च इंजन हैं जैसे गूगल वगैरह हैं, तो वो जो वेब पेजेस के टाइटल होते हैं उनको देखते हैं. तो इसलिए हमें टाइटल में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो रखनी होती है. Then is the body tag. Body tag element defines the document's body and is a container for all the visible contents such as heading, paragraphs, images, hyperlinks, tables and lists. यानी कि anything which is required to be made visible on the page, that must be inside body tag. H1 is element defines the large heading and P defines paragraph. तो ये आपको फॉर्मल भी एक एक्सप्लेनेशन आ गई है इसके ऊपर, पेज के ऊपर. आगे चलते हैं. So what is HTML element? An HTML element is defined by start tag, some content and then end tag. तो ये आपका start tag आ गया, फिर कोई एक content आ गया और फिर end tag आ गया. तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे they are going to, most of the elements are going to follow this structure. The HTML element is everything from start tag to the end tag. तो H1 जैसे हमने देखा पीछे, और ये P का टैग देखा हमने एग्जांपल में भी देखा था. तो ये स्टार्ट टैग हो गया, देन एलिमेंट कंटेंट एंड देन एंड टैग. एक टैग होता है BR. BR टैग का क्लोजिंग टैग नहीं होता. Some HTML elements have no content like BR element. These elements are called empty elements. Empty element do not have an end tag. तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका एंडिंग टैग नहीं होता, और उसका रीज़न क्या है? क्योंकि उनके दरमियान में हम कंटेंट नहीं डालते, इस वजह से उसमें नहीं उसका एक ही टैग होता है. और उसका क्या यूज़ है वो भी हम आगे देखेंगे. The purpose of web browser, Chrome, Edge, Firefox, Safari is to read HTML documents and display them correctly. Browser does not display HTML tags but uses them to determine how to display the content. तो जैसे मैंने अभी आपको डेमो भी दिया था कि HTML टैग ब्राउज़र में नज़र नहीं आते, लेकिन ब्राउज़र उन HTML टैग्स को रीड करता है, उसके मुताबिक अपना डिस्प्ले स्ट्रेटजी बनाता है. So this is HTML page structure. Below is visualization of HTML page structure. तो आपका देखें सबसे पहले जो root tag है that is HTML root, फिर level 2 पे जो टैग आ रहा है, एक head का टैग आ रहा है और दूसरा body टैग आ रहा है. head टैग के अंदर हम पेज टाइटल को जब लिखते हैं तो that is required to be kept in head tag, क्योंकि ये बॉडी में नहीं लिखना होता हमने. तो or any other meta information can also be placed. And in the body tag we show visible information. बाकी everything is hidden, इसलिए ग्रे में शो की गई है. वाइट में जो चीज़ शो की है वो एक्चुअली यूज़र को विजिबल होगी. अच्छा जी. The content inside body section, the white area above will be displayed in the browser. The content inside title element will be shown in the browser title bar और पेज टैब. तो जैसे मैंने आपको बताया था ये पेज टैब है, तो ये जो इंट्रोडक्शन टू HTML लिखा है ये कहाँ पे लिखा गया होगा? ये कहाँ पे लिखा गया होगा इस पेज के? ये लिखा गया होगा हेड टैग में, टाइटल में जाके लिखा गया होगा, इसलिए हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है इस पेज के. तो HTML देखें. HTML आजकल जो स्टार्ट हुई थी 1989 से, हिस्ट्री मैंने कल भी डिस्कस की थी. अब लेटेस्ट ये चल रहा है कि 2.16 HTML5 इज W3C रिकमेंडेशन, और अगली जो 5.1 है इन पे अभी रिवीजन्स वगैरह हो रही हैं.
तो करंटली जो स्टैंडर्ड चल रहा है W3C का, दैट इज HTML5 स्टैंडर्ड. एनी क्वेश्चन ऑन दिस कंटेंट? ये भी वेब पेज ही है, तो इस वेब पेज पे कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. चलें फिर आगे चलते हैं. HTML editors. A simple text editor is all you need to learn HTML. जैसे मैंने आपको नोटपैड की एग्जांपल दी है अभी. Learn HTML using Notepad or TextEdit. Web pages can be created and modified using professional HTML editors. तो HTML editors भी होते हैं, लेकिन एकेडमिक सेटिंग में अगर आप एडिटर्स यूज़ करेंगे तो आपकी लर्निंग नहीं होगी ज़्यादा. इसलिए रिकमेंडेड ये है कि आप नोटपैड में टाइप करें टैग्स को, ताकि आपको टैग्स याद हों. नोटपैड को यूज़ करें अपना HTML लिखने के लिए. However, for learning HTML, we recommend a simple text editor like Notepad. We believe in that using simple text editor is a good way to learn HTML. And what steps you can follow? Open Notepad. नोटपैड मैंने आपको खोल के दिखा दिया है, ठीक है, वो डेमो दे दिया मैंने आपको. नोटपैड यहाँ पे है, इस पे आप सीधे सीधे जाके टैग लिख सकते हैं. एंड ये मैंने आपको डेमो दे दिया है कैसे नोटपैड में सेव किया जाता है. आप सेव करेंगे तो मैंने आपको यही बताया कि कई दफ़ा आपको अगर आप देखेंगे तो नोटपैड आपको डॉट टेक्स्ट में ही सेव करेगा, डॉट HTML या HTML में सेव नहीं करेगा. तो इसलिए वो करवाने के लिए आपको डबल कोट लगाने पड़ते हैं जब आप नोटपैड में, इंश्योर करने के लिए कि HTML या HTML एक्सटेंशन सेव हो. So there are two kinds of extensions. Either you can use .html or you can use .html. Both are acceptable by the browsers. Then in this particular website, you can try yourself. This school provides online editor, जो उसका भी मैंने आपको डेमो दे दिया है. ये मैंने आपको खोल के दिखाया था. तो this is all up till now, some idea about the editors. ये मैंने आपको ऑलरेडी डेमो दे दिया, एक्सप्लेन कर दिया है. अगले पेज पे चलते हैं. Now HTML basic examples. HTML in this chapter we will show some. मुझे थोड़ा सा, मेरी मास्टर की क्लास भी है तो मुझे थोड़ा सा दे, मैं उनको मैसेज कर दूँ स्टूडेंट्स को. They should wait for me. Okay, now some HTML basic examples. In this chapter, we will show some basic HTML examples. Don't worry if we use tags, you have not learned about these yet. HTML documents must start with document doc type HTML. ये मैंने आपको बता दिया था. उसके बाद हमारा जो second tag होगा that will be HTML. Then visible part will be within body tag. ये हमने देख लिया था. अच्छा, डॉक टाइप को थोड़ा सा इसका भी रूल्स देख लें. डॉक टाइप डिक्लेरेशन रिप्रेजेंट्स डॉक्यूमेंट टाइप एंड हेल्प्स ब्राउजर्स टू डिस्प्ले वेब पेजेस करेक्टली. क्योंकि वेब पेजेस को सारे HTML को सपोर्ट कर रहे हैं, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी होती है ब्राउज़र की. इसलिए HTML में काफ़ी नई चीज़ें हैं HTML5 में, तो इसलिए हम ये डिक्लेरेशन बताते हैं ब्राउज़र को ताकि ब्राउज़र उसके मुताबिक पार्सिंग करें. It must only appear once at the top of the page before HTML tag. तो HTML tag से पहले एक दफ़ा आएगा ये.
डॉग टाइप डिक्लेरेशन इज नॉट केस सेंसिटिव। इसका मतलब ये हो कि आप स्मॉल कैप्स में भी लिख सकते हैं। HTML heading. HTML headings are defined from H1 to H6। जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी हेडिंग जो होगी वो H1 होगी और सबसे छोटी हेडिंग जो होगी वो H6 होगी। H1 defines most important heading, H6 defines least important heading। यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखें, H1 टैग है, फिर H2 टैग, H3 टैग, H4 टैग, H6 तक, और दीज आर विद इन बॉडी टैग। और यहाँ पे देखें कैसे फॉन्ट साइज छोटा होता जा रहा है। आई होप इट इज क्लियर। आगे चलते हैं। HTML पैराग्राफ। HTML पैराग्राफ्स आर डिफाइंड विद P टैग। ये आपको हमें P टैग नज़र आ रहा है, और इसको अगर खोलेंगे तो आपको ये P में तो हेडिंग नज़र आ रही है। इनका स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज होता है P का। फॉर एग्जांपल मैं एक और लाइन ऐड कर देता हूँ। नाउ I will run, another line has been added। सो P साइज का जो याद रखने वाली बात है कि P टैग का एक स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज होता है। जो भी P टैग में टेक्स्ट लिखेंगे वो एक खास स्टैंडर्ड फिक्स साइज में आएगा, और जिसका साइज काफ़ी छोटा होता है बिकॉज इट इज मेड फॉर राइटिंग पैराग्राफ्स। देन HTML links. HTML links are defined with A tag। A tag, ठीक है, ये A टैग से देखें शुरू हो रहा है और क्लोज हो रहा है। ये पूरा A टैग है, ये पूरा A टैग है। A टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है href, और उसमें फिर हम एक्चुअल URL डाल देते हैं, जिस URL पे क्लिक करने पे जाना चाहिए पेज को, वो वाला URL डाल देते हैं। और URL एक्चुअली नज़र नहीं आ रहा होता हमें, एक्चुअल जो टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा वो A टैग के अंदर लिखा होगा, दिस इज लिंक। लेकिन जब इसको हम क्लिक करेंगे तो इस URL पे चले जाएंगे हम, href वाले URL पे। लेट्स सी एग्जांपल, इसको डेमो देखें। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो आ रहा है H1 H2 हेडिंग है, ये HTML लिंक की H2 हेडिंग है, फिर ये पैराग्राफ हेडिंग है, और फिर ये एक लिंक बन गया है। उसमें देखें हाथ बना हुआ आ रहा है। ये लिंक कैसे बन गया? दिस इज लिंक, ये लिखा हुआ आ गया यहाँ पे। इट इज बिटवीन A टैग, और A टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट है जिसमें हम एक्चुअल URL डालते हैं। तो ये इसका जो URL हो बन जाएगा हाइपरलिंक का, वो बन जाएगा ये वाला href। ये आप नीचे अगर देखेंगे बॉटम लेफ्ट पे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि वो हाइपरलिंक बन गया। वंस आई विल क्लिक, आई विल गो टू दिस पेज। सो यू कैन सी हाउ सिंपल इज दिस टू क्रिएट अ हाइपरलिंक इन HTML। एनी क्वेश्चन ऑन दिस पेज? अच्छा जी, उसके बाद इमेजेस देख लें आप। HTML इमेजेस आर डिफाइंड विद IMG टैग। ये IMG टैग है, एंड सोर्स फाइल एंड अल्टरनेट टेक्स्ट विड्थ हाइट आर प्रोवाइडेड एज एट्रीब्यूट्स। इसको देखें नीचे, ये मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। ये देखें IMG टैग है, और एक ही ये भी एक टैग है, ये पेयर नहीं है टैग्स का। IMG एक टैग है, इस टैग के अंदर एट्रीब्यूट्स हैं। ये जो रेड में नजर आ रहे हैं आपको, दीज आर 4 एट्रीब्यूट्स, सोर्स एट्रीब्यूट, अल्टरनेट टेक्स्ट एट्रीब्यूट, विड्थ एट्रीब्यूट, हाइट एट्रीब्यूट। तो इमेज की सोर्स अगर मैं चेंज कर दूंगा तो इमेज मुझे नहीं नजर आएगी। मैं इमेज का सोर्स चेंज कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो इमेज गायब हो गई है, ठीक है। लेकिन इमेज गायब हुई है तो उसकी जगह पे अल्टरनेट टेक्स्ट आ गया है, w3school.com। ये देखें अल्टरनेट टेक्स्ट, इमेज का हाइपरलिंक लिंक गलत हो गया, तो उसकी जगह फिर अल्टरनेट टेक्स्ट ने ले लिया उसकी जगह, तो अल्टरनेट टेक्स्ट आ गया। अब मैं इमेज को दोबारा लिंक ठीक करता हूँ उसका, तो इमेज वापस आ जाएगी। दूसरा आप देखें, इसकी विड्थ हाइट विड्थ चेंज कर सकते हैं। विड्थ की मैं इसके विड्थ हाइट चेंज करता हूँ, आई रन इट अगेन। देखें विड्थ का साइज, इमेज का साइज बड़ा हो गया, ठीक है जी। एनी क्वेश्चन?
Any question? I hope it is very clear. अच्छा जी, तो उसके बाद how to view HTML source. With view HTML source code, right click on HTML page and select view page source in the Chrome और view source on Edge. ये मैंने आपको डेमो दे दिया था कि यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो व्यू पेज सोर्स करूँगा तो मुझे एक्चुअल उसका कोड नज़र आना शुरू हो जाएगा इस पेज का. और दिस इज इट कैन बी डन इजीली. इंस्पेक्ट HTML एलिमेंट, राइट क्लिक ऑन एलिमेंट, blank area, choose inspect. To inspect element, to see elements that are made up of, you will see both HTML and CSS. You can also edit HTML and CSS on a fly in the elements of style panes panel that opens. तो यहाँ अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो मैं इंस्पेक्ट टैग में जा सकता हूँ और यहाँ पे मैं एक्चुअल जाके चेंजेस भी कर सकता हूँ. ठीक है जी, यहाँ पे चेंजेस हो सकती हैं. कंसोल filter, so you can see there are various things over here. So this is all for today. इंशाल्लाह अगली क्लास में हम शुरू करेंगे. अगले पेज से हमने बेसिक एग्जांपल्स वाला पेज कवर किया, इसके बाद हम आगे चलेंगे. एंड इसमें बाकी इससे रिलेटेड जो स्लाइड्स होंगी वो मैं अपलोड कर दूंगा. पिछले लेक्चर्स की, लेक्चर 1 और 2 की मैंने स्लाइड्स अपलोड कर दी हुई हैं. दूसरा मैंने बताया था कि क्विज, यू कैन एक्सपेक्ट क्विज ऑन अल्टरनेट वीक्स इन अल्टरनेट वीक्स. ठीक है जी. एनी क्यूरी फ्रॉम द स्टूडेंट्स? आपकी तरफ से कोई क्यूरी है तो पूछ सकते हैं. जी नो सर. अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. मेरी अभी MS की क्लास शुरू होने वाली हो गई है बल्कि, तो लेट मी ज्वाइन दैट. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम.